एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਰੇਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ श्रीमती कृष्णा देवी, सुषमा राणी, जशपाल मेहता, सुनीता राणी, डॉक्टर सुभाष टोटेजा, हरजिंदर कुमार, किरण बाला, महेंद्र कुमार, संगीता, अशोक कुमार, हनी, रिया, संचित, पल्लवी, मिष्ठी, समक्ष, प्राची, मदन लाल थरेजा, हरजिंदर थरेजा, किरण थरेजा, सुभाष थरेजा, लालचंद थरेजा, पवन थरेजा, अनिल थरेजा, संजय थरेजा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਆਰਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਰੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਰੇਜਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 23 फरवरी 1965 ਨੂੰ श्रीमती कृष्णा देवी जी ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਰੇਜਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਰੇਜਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਰੇਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਰੇਜਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੀਆ, ਸੰਚਿਤ, ਪੱਲਵੀ, ਮਿਸ਼ਠੀ, ਸਮਕਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
तुमको दीनी मूर्ख लोग भेद नहीं जाने मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मेरी दीनी जगदिया दीनी रे दीनी राम राम रसमीनी जगदिया दीनी रे दीनी रूप प्रहलाद सुदामा निभोड़ी सुदामा निभोड़ी रूप प्रहलाद सुदामा निभोड़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी दास कबीर ऐसी ओढ़ी दास कबीर ऐसी ओढ़ी चूकी क्यों धरती जगरिया जीनी राम राम रसमीनी जगरिया जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बार मैं कहूँ, एक बार सभी उस ईश्वर का नाम उच्चारण कर रहे हैं। ये फल उस फल ने अपना बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी बोलिए सभी अपनी रचना से ईश्वर का नाम लें। इसका फल जो है उसमें आपका मिले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री मोरे तुम प्रभु पिता और माता मोरे तुम प्रभु पिता और माता मोरे झूठे जग का ये झूठा नाता झूठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
लोक के प्राणी हम प्रभु मृत्यु लोक के प्राणी मूर्ख है और है अज्ञानी मूर्ख। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सच्चिदानंद भगवान की जय। सृष्टि की रचना जब प्रभु ने की है तो जीवात्मा से प्रभु ने कहा मैं तुझे संसार में भेज रहा हूं मृत्युलोक में। तो जीवात्मा प्रभु से प्रश्न करती है प्रभु मैं अकेला आप मुझे वहां भेज रहे हो, मैं किसकी गोद में खेलूंगा, कौन मुझे प्यार करेगा। तो प्रभु ने उस जीवात्मा के बात का उत्तर दिया 2 फरिश्ते भेजूंगा मैं, उनकी गोद में खेलेगा वही तेरे को प्यार करेगा। फिर जीवात्मा ने पसंद किया प्रभु जब थोड़ा मैं सियाना हो जाऊंगा, मेरे संस्कार मेरी विद्या ज्ञान कौन को रहेगा। प्रभु ने फिर उस जीवात्मा की बात का उत्तर दिया उसके लिए भी 2 फरिश्ते भेजूंगा। जीव ने प्रश्न कर दिया बोले मैं जब जवान हो जाऊंगा मेरी रोजी रोटी रहने का। प्रभु ने फिर उत्तर दिया 2 फरिश्ते भेजूंगा। फिर उसी बात पर उत्तर दिया प्रश्न किया प्रभु मेरी गृहस्थी आगे कैसे चलूंगा मैं, मेरा परिवार। प्रभु ने फिर उत्तर दिया जीवात्मा का 2 फरिश्ते भेजूंगा। वो सुनता रहा जीवात्मा, कहने लगा प्रभु ऐसे तो संसार में बड़ी भीड़ हो जाए, आप हर एक कार्य के लिए 2-2 फरिश्ते भेज रहे हो। और प्रभु ने उत्तर दिया भेजूंगा 2 ही, और तेरे माता पिता के रूप में होंगे। सारा जीवन का जिम्मा उन्हीं का होगा। और एक बात मैं तुझे बता दूं जीवात्मा कि तेरे कारण उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। तेरे कारण वो जो 2 फरिश्ते हैं तेरे माता पिता के ऊपर, उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਓਏ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਏ या मैं हुआ, इस दुनिया में सब परदेसी हों या मैं हुआ। कल किसी ने मैनू रोना, कल किसी ने मैनू रोना, अज किसी नूं मैं रोवा। इस दुनिया में
इस दुनिया में सब परदेसी तू होए या मैं होवा कल किसी ने मैनू रोना कल किसी ने मैनू रोना अज किसे नू मैं रोवा इस दुनिया में सब परदेसी तू होवे या मैं होवा इस जीवन विच जैसा करेगा वैसी ही गत होनी है वैसी ही गत होनी है इस जीवन विच जैसा करेगा वैसी ही गत होनी है वैसी ही गत होनी है एक दिन प्यारे हर बंदे की राम नाम सत होनी है राम नाम सत होनी है जो आया है हो जाएगा जो आया है हो जाएगा तू होवे या मैं होवा इस दुनिया में सब परदेसी तू होवे या मैं होवा कल किसे ने मैनू रोना कल किसे ने मैनू रोना अज किसे नू मैं रोवा इस दुनिया में सब परदेसी तू होवे या मैं होवा तू होवे या मैं होवा तू होवे या मैं होवा होली वासुदेव भगवान की मैनू रोना कल किसे ने मैनू रोना अज किसे नू मैं रोवा इस दुनिया विच सब परदेसी तू होवे या मैं होवा इस दुनिया विच सब परदेसी तू होवे या मैं होवा कल किसे ने मैनू रोना कल किसे ने मैनू रोना अज किसे नू मैं रोवा इस दुनिया विच सब परदेसी तू होवे या मैं होवा चुन चुन कलियां महल बनाया बंदा कहे घर मेरा है बंदा कहे घर मेरा है चुन चुन कलियां महल बनाया चुन चुन कंकर महल बनाया बंदा कहे घर मेरा है बंदा कहे घर मेरा है ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रैन बसेरा है चिड़िया रैन बसेरा है जो कीता सो सामने आना जो कीता सो सामने आना तू होवे या मैं होवा इस दुनिया में सब परदेसी तू होवे
श्रद्धालु योग से पंचकाल योग पंडित जी गणपाण कहता है जब ये जीव चला जाता है, सारा जीवन अपने परिवार में रह करके इतना मोह हो जाता है, कुछ दिन तक उसकी जो आत्मा है कुछ ही दिनों तक अपने परिवार में विचरण करती है और अपने परिवार से कुछ कहना चाहते थी। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब हो मिलेंगे, दूर पड़ेंगे यार, अब के बिछड़े कब हो मिलेंगे, दूर पड़ेंगे यार। किसी वृक्ष से किसी टहनी से पत्ता टूट जाता है, हवाएं उसको उड़ा करके बदन कभी को जाती है। इसी प्रकार से न जाने कहां अब मिलेंगे दोबारा, बस इतना मिलन था हमारा तुम्हारा। न जाने कहां अब मिलेंगे दोबारा, बस इतना मिलन था हमारा तुम्हारा, बस इतना मिलन था हमारा तकदीर में तुमसे मुलाकात कितनी, तकदीर में तुमसे मुलाकात कितनी, वो यारी जो तुम संग ये दिन रात कितनी, वो यारी जो तुम संग ये दिन रात कितनी, न जाने जन्म कब मिलेगा दोबारा, बस इतना मिलन था हमारा तुम्हारा। न जाने कहां अब मिलेंगे दोबारा, बस इतना मिलन था हमारा तुम्हारा, बस इतना मिलन था हमारा तुम्हारा। चला छोड़ कर मैं ये परिवार मेरा, चला छोड़ कर मैं ये परिवार मेरा, सभी ले लो अंत में नमस्कार तेरा, सभी ले लो अंत में नमस्कार तेरा, संभालो इसे ये जहां है तुम्हारा, बस इतना मिलन था हमारा तुम्हारा,
सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा की करता, यज्ञ कर्म का रूप है नेत्र निष्ठा, यज्ञ रूप है ब्रह्म का ये जानत धीमा, जो नर त्यागे कर्म को वो रथ नारायण श्यावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। भगवान गीता के अंदर जीव को समझाते हैं कि जीव जैसे तेने संसार के अंदर जन्म लिया और उसका भुगतान योग करके जाना भी पड़ेगा। आज तक संसार के अंदर जो विवाद जब भगवान राम के पिता राजा दशरथ संसार से जाना लगे तो उस समय 6 बार उन्होंने राम राम का नाम उच्चारण किया। 6 बार राम का नाम क्यों उच्चारण किया? 5 बार भी कर सकते, 3 बार भी कर सकते, 7 बार भी कर सकते। 6 बार उन्होंने भगवान का नाम क्यों उच्चारण किया? वहीं पर 2 साल बुद्धि डाल के कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल विकल कहे रघुनाथ, लाभ हानि यश अपयश जन्म मृत्यु प्रमाद। ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने पास रखी हैं, इसलिए भगवान राम का नाम सारे 6 बार लिया। तो भगवान कहते संसार के अंदर कोई रहने वाला तो हर इंसान अपने मन के अंदर अभिमान करता है कि ये परिवार मेरे कारण चल रहा है, मगर इस बात का ज्ञान नहीं है कि परिवार के कारण चल रहा है। अक्सर हम कहा करते हैं कि देखो एक अमिटी थी, उसके अंदर कुछ गोले जा रहे थे, एक गोले को अभिमान हो गया कि ये मिट्टी मेरे कारण चल रही है, अगर मैं मिट्टी से बाहर चला जाऊँ ये मिट्टी समाप्त हो जाएगी। छाल लगाई, मिट्टी से बाहर आ गया, हवा के ऐसे कपड़े लगे कि उसके ऊपर सफेद पड़ने लगे। थोड़ी देर बाद देखा कि अंगीठी के अंदर कैसे दूसरे गोले लाल है, पर मेरे तरफ अचानक जो दूसरे गोले के अंदर लाल, और छाल लगाई फिर अंगीठी के अंदर चला गया, जैसे दूसरे गोले लाल से क्षण भर के अंदर गोली वैसा लाल होता है। अब उसके मन के अंदर ये विचार पैदा हो गया, ये मिट्टी मेरे कारण नहीं चल रही थी, बल्कि मैं ये मिट्टी के कारण चल रहा था। इसी प्रकार इंसान भी अपने मन के अंदर विचार करता है ये परिवार मेरे कारण चल रहा है, और इस बात का ज्ञान नहीं होता ये परिवार मेरे कारण चल रहा है, मेरे बेटों के कारण चल रहा है, मेरे पुत्र के कारण चल रहा है, मेरे बेटी के कारण चल रहा है, मेरे भाई के कारण चल रहा है। ये इंसान से बात का ज्ञान है। हर इंसान अपने अपने कर्म का फल लेकर के आता है। ये कल होता है केड़िया सुर का चरण चौबारिया एक दिन दिखाई सर्दियां वेखियां, केड़िया सुर का लखा मैदान मारन, अगे मौत दे नाड़दियां वेखियां, जेड़ियां सूरतां जड़ काट दी घोड़ी गईयां, मुड़ शहर विच न वड़दियां वेखियां। एक बार की सुनता के गया उस रोज दिन हमें मिलने वाला नहीं, अनेक लोग के अंदर तो मिल सकता है, मगर उस रोग के अंदर हमें नहीं मिल सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं हर इंसान अपने कर्मों का फल ले करके आता है, धो करके चला जाता है। एक बड़ी बात है, एक बापू के दो बेटे किस्मत जुदा जुदा है, एक बापू
एक फिर रहा कलाम है, एक शहंशाह जहां का, एक फिर रहा कलाम है, एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। पत्थर तो वही है मगर हाथ कारीगर, पत्थर तो वही है मगर हाथ कारीगर के। एक की तो होती पूजा, एक फर्श में जड़ा है, एक की तो होती पूजा, एक फर्श में जड़ा है। एक बाप के दो बेटे, दो बेटे, एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। फूल तो वही है मगर हाथ मालिक के, फूल तो वही है मगर हाथ मालिक के। एक तो चढ़ा है भगवन पे, एक अर्थी पे सजा है, एक तो चढ़ा है भगवन पे, एक अर्थी पे सजा है। एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक बाप के दो बेटे, दो बेटे, एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। हर इंसान के अपने अपने भाग्य होते हैं, भाग्य लेकर के आता है, भाग्य लेकर के चला जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक तोता और एक मैना बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे और दोनों में झगड़ा हो गया। तोता कहने लगा कि स्त्री बेवफा होती है, मैना कहने कि तुम ये बात गलत कर रहे हो, आदमी बेवफा होता। इतना झगड़ा हो गया, अब इसका फैसला करते हैं। दोनों भगवान शिव के दरबार के अंदर पहुंचे। भगवान शिव बैठे हुए थे और पार्वती उनके साथ बैठे हुए। तोता जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे मन के अंदर शंका पैदा हो गई है। मैं कह रहा हूं कि स्त्री बेवफा होती है, मैना कहने लगी ये बात गलत कर रहा है दूसरा, आदमी बेवफा होता है। अब हमारा फैसला करो कि कौन आदमी बेवफा है या स्त्री बेवफा। तो भगवान शिव कहने के होता ये कहते हैं कि स्त्री बेवफा है। वो कहेंगे मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और कहानी के मालूम जब पता चल जाएगा स्त्री बेवफा होता है। और तोता कहानी शुरू करने लगा, कहने लगा कि प्रभु, एक शेर था और उसका शिखर नाम का पुत्र था। विवाह उनका स्त्री बड़ी खूबसूरत, किसी कारण पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब अपनी पत्नी को कहने लगा कि मेरे पिता ने मुझे घर से बेदखल निकाल दिया, मैं जा रहा हूँ। इसलिए कहेंगे कुछ प्रॉब्लम तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ देखा अगर ये बन गया चलो। आज चंद अपने बच्चे को लेकर के जा रहा है, दूर जंगल के अंदर जा करके उन्होंने आराम किया। एक वृक्ष के नीचे दोनों आराम करने लगे। अब सुधार उसका पति जाग रहा था और उसकी पत्नी सो रही थी। एक सर्प आया और एक सर्प ने उसकी स्त्री को डंक मारा और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उसके पति ने उसका जहर निकाला। जहर निकालने के पश्चात भगवान की ऐसी कृपा उसकी पत्नी जीवित हो गई। अब पत्नी को लेकर के चल पड़ा आश्रम के अंदर। जब आश्रम के अंदर पहुंचा, वहां जो संत थे बड़े ही खूबसूरत 1.5 डॉल वाले थे।
उसकी स्त्री का मन उसके ऊपर आ गया। जब मन उसके ऊपर आया तो उसका पति कहने लगा कि मुझे प्यास लगी है, मैं जल लेने के जा रहा हूँ, अगर आपने जल पीना है तो मेरे साथ चलो। उसने कहा मुझे जल पीने की कोई जरूरत नहीं, आप जल भी आइए। अब सुशांत जल लेने के लिए जब कुएं पे गया, जल निकाला, पी लिया, तब वो संत उसको कहने लगा तू बहुत खूबसूरत है, डर डर भटक रही है, क्या तू मेरे से विवाह करेगी? देखा मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, कैसे उसका छुटकारा होगा? देखा उसका छुटकारा मैं कराऊंगा। उसने कहा ठीक है। अब वो क्या गया अपने, जब उसका पति जल पी करके घर आया तो उसकी पत्नी कहने के मुझे भी प्यास लगी, लेकर के देखा कि आपके लिए मैं जल लिया था। देखा नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कुएं पे जल लेने के लिए उसका पति गया तो पीछे उसकी पत्नी भी साथ में। जब कुएं से जल निकाल रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे धक्का दिया और कुएं के अंदर डाल दिया और आकर के आश्रम के अंदर आया। आश्रम के अंदर उसके साथ अपने सत्र के साथ विवाह कर लिया। सत्र ने उसको नृत्य गान सिखा दिया, नाचने लगी और उसका सारा सभा के अंदर शहर के अंदर रुतबा हो गया तो बहुत उत्साह नृत्य करते, बड़े पैसे आने लगे। उधर जो उसका पति जो नहर के अंदर गया था वो एक जंजीर को पकड़ करके रुक गए। वहाँ नट आ रहे थे। जब नट आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी जान को बचाओ। जब नटों ने देखा कि एक जीव इस कुएं के अंदर अटका हुआ है तो उसे बाहर निकाला और कहने लगा तो कौन है? वो कहने लगा मैं सारी अपनी बात बताई कि मेरे पति ने मुझे धक्का दे करके कुएं के अंदर डाल दिया। अब कहने लगा तुम कहाँ जाओगे? हमारे साथ बस नाट करो। अब वो बंजारों के साथ नाट करने लगा। एक दिन राजा के दरबार के अंदर भाई नट अपनी नौटंकी करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर उसकी स्त्री भी वो जो नृत्य करती थी वहाँ थी। जब राजा के साथ उसके सामने नृत्य किया तो राजा प्रसन्न हो गया और कहने का जो मांगना जो मांग लो। और उस स्त्री ने अपने पति को पहचान लिया कि ये बच गया। जब राजा प्रसन्न हो गए तो कहना जो मांगना जो मांग ले। वो कहते हैं मैं एक बार जो तुम कहेगी मैं आपको दूंगा। वो कहने लगा ठीक है, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो राजन तो जो वो आदमी है उसे मृत्यु दंड दे दी। देखा मृत्यु क्यों मृत्यु दंड? तो वो सत्य कहने लगा कि राजन मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद मुझे मौत के घाट उतार कर मुझे कुछ चिंता है। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को सांप के काटने से बचाया था, इतने संत के साथ अपना प्रेम किया और मुझे कुएं के अंदर डाल दिया। अब यह नृत्य करते हुए फिर भी आपने ये करिए कि मेरे पति को फल करो, मैं इसका पति। इसलिए भगवान पूरे स्त्री जो होती है बेवफा होती है। अब मैं ना कहने लगी मैं भी आपको बात बताइए तो पुरुष बेवफा होती है। वो कहने का पुरुष कैसे बेवफा होता है? वो कहने लगे मैं भी आपने छोटी सी बात सुनाती हूँ, एक आपको बताओ। वो कहने का सेठ था, उसका एक जवान पुत्र था जो जुआ खेलता था, सारे का सारा सामान बेच दिया। अब उसने पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब जंगल के अंदर रहने लगा। खूबसूरत भाई धीरे धीरे वो एक शेठ के घर पहुंच गया। जब शेठ के घर पहुंचा तो उसने उसका आदर सम्मान किया। उसकी शौहरत आदर को देख करके उसको कहने लगा कि तू क्या मेरी बेटी से विवाह करेगा? वो तो ये चाहता ही था कि मेरे पर जुआ करने के लिए पैसे के लिए उसने जो अपने राजा की बेटी शेठ की बेटी के साथ विवाह कर लिया। अब शेठ कहने लगा कि आप विदा होकर के खर्च करें। अब वो जाने लगे तो उसने अपनी पत्नी को साथ लिया, ठान लेकर के चल पड़े। जब आदर्श से अंदर पहुंचे तो उसका पति कहने लगा कि देखो ये जंगल का रास्ता है, कोई चोर डका आ जाएगा, तुम्हारे गहने भी लूट करके ले जाएगा, धन भी लूट कर ले जाएगा। तो ऐसा करो सारा धन उतार करके जो आपके गहने उतार करके मेरे बुजुर्ग महफूज रखें। तो उसके पति ने सारे गहने उतार करके अपने पति को दे दिए
तो फिर दे दिए। तो वो अपनी स्त्री को मार करके आगे निकल गया। जब आगे निकल गया तो उसकी बेटी जो है अपने घर आई और अपने पिता से कहने लगी कि आपने मेरा विवाह तो कर दिया था, मगर उसने मुझे मार पीट करके भगा दिया। वो कहने लगा इसमें थोड़े से बेवफा होते हैं। दोनों भगवान शंकर के सामने बैठे थे, तो अब भगवान शंकर को कहने लगे आप ही बताओ कि स्त्री बेवफा है या पुरुष बेवफा है। तो भगवान शिव कहने लगे ना स्त्री बेवफा है ना पुरुष बेवफा है, अपनी अपनी सोच बेवफा है। जिसकी सोच अच्छी होती है सारे कार्य सिद्ध होते हैं, अगर सोच बुरी हो जाए तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। दिमाग की सोच और पैर की बोझ एकदम खत्म हो जाती है। इसलिए इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर नेगेटिव सोचेगा तो धर्म के अंदर जाएगा, पॉजिटिव सोचेगा तो स्वर्ग के अंदर जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं श्री रामलाल जी जो अपना शरीर छोड़ करके प्रभु चरणों के अंदर जा भी नाचे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं इस परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और उस जीव आत्मा को स्वर्ग के अंदर निवास जैसी बात कहकर हम अपनी वाणी को यहाँ विराम करेंगे। अब मैं श्री हरुमान त्रेजा जी से निवेदन करूँगा जो मंच पे आकर के श्रद्धा के पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ त्रेजा परिवार के नाल दुख साझा करने ਲਈ आए हुए मेरे बहुत ही सत्कारयोग बुजुर्गों, माताओं, बहनों के अजीज दोस्तों, आज जिस तरह के आप सब जानते ही हो साडे त्रेजा परिवार के सीनियर मैंबर बुजुर्ग लाला रामलाल जी त्रेजा जो कि कुछ दिन पहला परम पिता परमेश्वर के हुक्म अनुसार चलाना करके गए हैं। अज ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲਾਲਾ ਰਾਮਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ढंग के नाल जीवन बतीत करके गए हैं। उन्होंने अपने जीवन काल दे विच बहुत नाम कमाया। परिवार के प्रति जो भी जिम्मेवारियां एक परिवार के मोढे दियां मुखी दियां हुंदियां हन और जो एक पिता की ड्यूटी होंगी है, एक फर्ज होंदा है, उन्होंने बड़ी बखूबी ढंग के नाल निभा कर गए हैं। जे आप परिवार वजों गल करिए तो ये परिवार बड़ा ही सूझवान, पढ़ा लिखा और इंटैलीजेंट परिवार है। लाला जी ने अपने बच्चों को बहुत ही वधिया तालीम दी, उन्होंने संस्कार दिते जिन्हों बच्चों अज मेरे छोटे वीर श्री रजिंदर जी जो कि रोटरी क्लब के प्रेजिडेंट वजों अपनी सेवावां दे चुके हैं और उन्होंने छोटे ब्रदर महेंद्रपाल जी जो वो भी समाज सेवी संस्थावां नूं अपनी सेवावां दे रहे हैं। उन्होंने नाल साडे छोटे वीर अशोक जी त्रेजा जो कि आत्मविचार कुटिया के नाल बहुत लंबे समय तो जुड़े हुए हैं। वैसे तो ये सारा परिवार छोटे तो लैके बड़े तक आत्मविचार कुटिया के नाल बहुत लंबे समय तो जुड़े हुआ परिवार है, बहुत धार्मिक विचारों वाला परिवार है। और इस तो इलावा अशोक त्रेजा जी सहारा क्लब के प्रधान और भारत विकास परिषद के एक एक्टिव मैंबर वजों काम कर रहे हैं। देखा जाए तो ये सारा परिवार ही समाजिक संस्थावां के नाल जुड़िया हुआ है और नाम कमा रहा है। सो स्टेज की मर्यादा के मुताबिक आप सारे ने बुलारिया ने इत्थे एक समय का जरूर पालन करना है। सो सब तो पहला मैं बेनती करांगा साडे आत्मविचार कुटिया प्रबंधक कमेटी के संचालक हैं श्री विजय गावर जी महात्मा जी, वो भी स्टेज पर आएंगे और समय का ध्यान रखते हुए
2 मिनट के वास्ते परिवार नाल अपने विचार साझे करनगे। श्री विजय डावर। कहा जाता है कि मनु खाली हथ आंदा खाली हथ जाता है, लेकिन श्री राम लाल जी के संबंध असीं ये गल नहीं कह सकते। जैना वर्गे संत महापुरुष जिहड़े सुभाव के होंदे ने उन्हां दे संबंध विच असीं ये गल असीं कहनी ठीक नहीं समझ। ये दुनिया दे विचों खाली हथ बिल्कुल नहीं गए। तो तुसीं सोचोगे कि धन दौलत तक लैके जाता नहीं, ये भी नहीं लैके गए। जो दुनियावी धन दौलत है जी असीं जेबां च पा के फिरदे हां जां बैंकां च जमा कराते हैं, ये कोई भी नहीं लैके जाता। लेकिन इस तो उपर एक धन दौलत है जिसका खजाना है अपने नाल लैके गए, वो है नाम सिमरन का खजाना, सेवा का खजाना, परोपकार का खजाना, दया का खजाना। सत्संग दे विचों इन्होंने वो मोती इकट्ठे किए जेड़े कि बंदा नाल लैके जा सकता। जदों असीं कहते हैं ना कि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा, तो सानू सोचना चाहिए कि असीं किस चीज़ का हिसाब देना। असीं इस चीज़ का हिसाब देना कि असीं दुनिया के विच कितना असीं समाज के विच विचरे, कितना धन दौलत इकट्ठा किया, कितनी मैं राजनीतिक सत्ता का सुख भोगिया। भुल जाओ, इहो जी किसी भी चीज़ का धर्मराज को लेकर नहीं देना, तो ना ही उन्हें मंगना। उन्हें मंगना कि तुसीं परोपकार कितना किया, तुसीं सेवा कितनी की, तुसीं नाम सिमरन कितना कुछ किया। असीं दुनियावी धन इकट्ठे करते रहते हैं, लेकिन जिहड़ा धन असीं नाल लैके जाना है, जिसकी कोई वसीयत नहीं करनी पैंदी, उस धन को इकट्ठा करने के बारे असीं कदे विचार ही नहीं किया। लेकिन लाला राम लाल जी इसके धन के बोरे भर के लैके गए ने, खजाने दे एक इहो जिहा खजाना नाल लैके गए ने, तो साडे सारिਆਂ ਲਈ एक प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। इन्हां दा जाना एक साडे ਲਈ प्रेरणा का स्रोत जेकर असीं चाहिए तुसीं इन्हां कोल प्रेरणा असीं लै सकते हाँ। देखो दुख तां हुंदा है, पुराने दरख्त की छां का मजा एक अपना ही हुंदा है, ये परिवार के मैंबर जानते। लेकिन ये समा है इन्हां दी जिंदगी तो प्रेरणा लैण दा। इतना कुछ मैं कहता होया मैं क्षमा का याचक हाँ। धन्यवाद। हाँ जी, साडे दरम्यान साडे परिवार के नाल दुख साझा करने लई कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब साबका श्री सुरजीत सिंह जी रखड़ा साडे दरम्यान पहुँच चुके हैं। मैं उन्हों का तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। बहुत सारिया संस्थावां ने परिवार नाल दुख साझा करते हुए शोक संदेश भेजे हैं। मैं उन्होंने नाम बोलांगा। अरोड़ा पंजाबी बरादरी समाना, समाना कला मंच बड़ैचा रोड समाना, आत्म विचार कुटिया समाना, बावलपुर समाज पत्रकार गंगानगर, मनोज छाबड़ा प्रेस रिपोर्टर समाना, श्री शिव मंदिर सत्संग भवन, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री महावीर मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर, श्री इच्छापुर गौरीनाथ मंदिर ग्रीन टाउन समाना, श्री अनंतपुर कोटिया सिनेमा चौक समाना, श्री परशुराम मंदिर ब्राह्मण सभा समाना, श्री अनंतपुर अनाथ गौशाला समाना, डॉक्टर हरिचंद पिंगला आश्रम समाना। इन्हों तो इलावा श्री कपूर चंद जी बांसल एक्स प्रेजिडेंट नगर कौंसल समाना, श्री जगतार सिंह जी राजा एक्सन LA समाना, श्री सोशल वर्कर समाना सोसाइटी बर्तन क्रॉकरी एसोसिएशन समाना, प्रिंसिपल एवं स्टाफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाजीपुर, प्रधान आसानंद दुलानी जी सीनियर सेक्रेटरी काउंसिल समाना, प्रिंसिपल एवं स्टाफ शेख लेफ्टिनेंट मोहित कुमार गर्ग स्कूल समाना एसोसिएशन समाना, श्री चांद वर्मा जी अध्यापक दल पंजाब, गवर्नमेंट टीचर यूनियन पंजाब, श्री जसवीर सिंह जी प्रधान सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, श्री राजकुमार सचदेवा बालपुर महासंघ प्रधान, सेवादार अनाथ गौशाला मंदिर माइसल कमेटी रोटरी क्लब समाना, राजकुमार जी XMC समाना, संजय मंत्री जी उन्होंने श्री चेतन सिंह जी जोड़ा माजरा के ब्रदर वो भी इतने साढ़े नाल
शौक व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਖੜਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਚੰਨ ਮਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਟ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੈਠ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਸੀ, ਨਗਰ ਵਾਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਬੰਧੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਧਰੇਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਧਰੇਜਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਧਰੇਜਾ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਰੇਜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ
मदन लाल थरेजा जी, इन्होंने असीं प्यार नाल चाचा जी कहते हैं, वो इस तरह की शख्सियत ने, बहुत ही मेरा उन्होंने नाल प्यार है, परिवार के नाल बड़ा नेड़ का संबंध है। और जो मदन लाल जी की मैं गल करदा, औखे समय के साथी ने, हरेक तरीके के नाल जदों समाणे की जिस तरीके के नाल वो सेवा करते, और खास करके साडी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नाल हमेशा ही अगे लग के अगे हो के पार्टी की उन्होंने सेवा की है। और मैं निजी तौर पर उन्होंने बहुत धन्यवाद करता। मेरी राजनीति के ये जोड़ी है भगवान दास गैटी जी की और मदन लाल, एक इस तरह की जोड़ी है जिसका बहुत वड्डी सानू मदद सपोर्ट मिलती है, और बहुत वड्डी सेवा शहर की समाज की। सो अज जिथे परिवार को घाटा पिया, परिवार का दुख बनाने वास्ते पाए हो, मैं भी इस परिवार के नाल परिवार के तौर पर अपने तौर पर कांग्रेस पार्टी वालों परिवार के नाल दुख साझा करता। बख्शिश कर परमात्मा वाहिगुरू विछड़ी हुई रूह को अपने चरणों के विच निवास बख्शण, भाना मनण का अपने चरणों के विच और ताकत बख्शण, उन्होंने निवास बख्शण। सो इन्ने शब्दों के नाल मैं प्रार्थना करदा, आई हुई संगत का धन्यवाद करदा कि बहुत बड़ी गिनती मैं देख रहा, बहुत बड़ा इकट्ठ है। तुसीं परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते आए हो, मैं भी परिवार वालों तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और मैं समझदा तुहाडे आउण दे नाल परिवार का दुख कटिया। सारे का कोट धन्यवाद। जो भी चाह पानी का इंतजाम किया सारे लैके जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। श्री नैना आर्या धर्मशाला समाना, श्री अनंतपुर कुटिया समाना, श्री सिद्ध महावीर मंदिर समाना, पिंगला समाना, अनाथ गौशाला समाना, श्री राधा कृष्ण मंदिर समाना, श्री सत्यनारायण मंदिर समाना, बालपुर पंचायत समाना, श्री लक्ष्मी नारायण समाना।
भीतर